Morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Uh, okay. Let's first complete this thing. The rest of the conditions that we are left with in neuro, and then we'll be starting with okay with ortho. Okay. Not with ortho. With electro. Okay. Uh, okay. So we are supposed to continue from here. No, that is attention deficit hyperactive disorder. Okay. So as the name suggests, first of all, just let me know if there is any issue with the audio or something else. सब ठीक है? Sir, there is some There is disturbance. disturbance? Okay, just Yes, sir. give me a second. Just let me just leave it first. Okay. Is it better now? Yes, sir. Okay, great. Okay. Uh, hmm. Okay. So, ADHD, that is attention deficit hyperactive disorder. Okay, so again, you can say that this is more of a psychological disorder rather than a neurological disorder, no? And then again, we can see this condition mostly in the children because again, it is a neurodevelopmental disorder. No? Mostly during development of the child, we can see this particular condition where, as the name suggests, no, that there is this attention deficit and then the child is supposed to be hyperactive as well. So again, we can see as a whole there can be a vast majority of different reasons because of which a person can acquire this particular condition, and there can be genetic reason, there can be environmental factors like maybe any heavy metal inhalation or something else by the mother or maybe by the parents, and then which is like genetically transmitted to the child and all that, and which affects the neurotransmitters, and because of which eventually we will see as a whole the child will have a deficit in the attention, and the child will along with that will be hyperactive as well. So again in this case we can see okay, so in this case we can see that we can indulge the child in various like strenuous activities so as to make the child exhausted ना, ताकि वो exhaust feel करे, and उसके बाद में the child like simply like rests and sit down. And इसके अलावा we can like indulge the child in various like fruitful activities ना, जहाँ पे मे बी कुछ ऐसी activities जहाँ पे कुछ मतलब उससे फ़ायदा हो रहा है, तो we can like uh, prescribe those kind of activities to the child. And इसके अलावा we can see that again we need to go for a tailored PT ना, मतलब we need to figure out कि what the exact thing the like this thing that the child is presenting, and according to that we can see that we need to prescribe the exercise protocol according to that. Okay, so that is ADHD. I think that is simple. Okay, now coming up to this thing, this is really important. That is dementia, Alzheimer's, and the delirium. Okay, first of all, talking about this, we can see that Alzheimer's is a condition. Alzheimer's condition है, ठीक है? अगर आपसे कोई पूछता है कि इन तीनों में से condition कौन सी है और मतलब condition है तो the condition is Alzheimer's, ठीक है? Alzheimer's is a disease or a condition, and in case of Alzheimer's, we can see the clinical feature इसका अगर हम बात करते हैं ना, जो जिस तरह से मतलब जो इंडिविजुअल है जो प्रेजेंट करता है, दैट इज डिमेंशिया, और यू कैन सी दैट कैन बी डेलीरियम एज वेल. इट मीन्स कि डेलीरियम और डिमेंशिया, these are the symptoms है ना, और these can be the clinical features that an individual can show in case of Alzheimer's. So Alzheimer's is a disease, or Alzheimer's is a condition in which the person can show dementia or delirium. ठीक है? तो like have you seen any person with dementia? मोस्टली किन में होता होगा, चाइल्ड चिल्ड्रन में कि यंग अडल्ट में कि ओल्डर इंडिविजुअल्स में? Old age में. ओल्ड इंडिविजुअल्स में ना, एग्जैक्टली. एंड कोई देखा है अपने केस, मे बी कोई देखा हो अपने आईसीयू में या कहीं वार्ड में या कहीं पे? ओके. मैंने एक केस देखा था जो कि आईसीयू में था, एंड लाइक ही हैड फॉरगॉटन लाइक एवरी वन फ्रॉम हिज फैमिली,
And again, this is really heartbreaking ki, like the person forgets things very easily, na. And again, there might be something maybe some childhood memory जो कि उस person को याद हो, लेकिन there can be some other things which the person has a tendency to forget, or maybe the person might forget the individuals of the family members and all that. That can be seen in case of Alzheimer's. So mainly again we can say it is a neurodegenerative disease. Again, there is neurodegeneration. The reason for neurodegeneration is mainly in case of Alzheimer's. Just remember this thing, that we have got this APP protein, that is amyloid precursor protein. Okay, so we have got this amyloid precursor protein in the brain, which is being broken down by certain enzymes, that is beta secretase. Then we have got the gamma secretase. इसके अलावा we have got the alpha secretase as well. ठीक है, तो we have got alpha and gamma and these beta secretases, which eventually breaks down the amyloid precursor protein into small sections, है ना, so that like for its like further action. But mainly what we can see, if the beta secretase, or you can see if these secretases, if they are not able to break down the amyloid precursor protein properly, so in this case we can see कि amyloid precursor protein जो APP protein है, that is really sticky, and that might accumulate in the synapse, the region between two neurons, na, between two neurons it can accumulate there, the amyloid precursor protein, है ना, and eventually it will disrupt the transmission, the neurotransmission, है ना, transmission between two neurons, two consecutive neurons. It will disrupt the neurotransmission, and that can lead to all this neurodegeneration. That is called as the Alzheimer's. So mainly just remember this term, that is amyloid precursor protein, which is is sticky, है ना, and if the beta secretase and all these secretases, if they are not able to break down or chop down, or this particular protein, in that case it might accumulate in the synapse, and that will disrupt the further neurotransmission, and that can lead to like disruption of the signals between two neurons, and that can lead to Alzheimer's. Okay, so that is the Alzheimer's disease. Mainly you will see same जैसे Alzheimer's में हम देखते हैं the person has this tendency to forget things, है ना, but हाँ इसमें ज़्यादा होता है, मतलब the person can even forget their family members and all. In case of Parkinson's, again we can see there might be the tendency of the person to forget things. Again वहाँ पे भी a person can forget, but that can be like the recent memory, maybe like where have I kept my this thing, my keys, or like my something, my mobile phone or something, तो वो person भूल सकता है, लेकिन as a whole, like forgetting the family members and the people, it is not that much prevalent in case of Parkinson's, but yes, it can be seen in case of Alzheimer's. Okay, it was a really funny scene. पता नहीं मैंने बताया कि नहीं इस बैच में कि that particular patient जो कि ICU में थे, so like he was really frustrated, like being in the ICU for a long period of time, and like whenever some like कोई मेडिकल प्रोफेशनल जब कोई एंटर करते थे अंदर, मतलब उनको एग्जामिन करने के लिए या ट्रीट करने के लिए कुछ, तो ही यूज टू like use these cuss words, and he used to like scream all the time, है ना, वो मतलब चिल्लाना शुरू कर देते, and उसके बाद वो गाली एंड वो सब देना शुरू कर देते थे वो सब. But again that is part of the like, लेकिन like we used to say कि like he has forgotten all his family members, everyone, but still he has not forgotten these words and all that. तो मतलब वो गाली वगैरह नहीं बोले, लेकिन हाँ फैमिली मेम्बर्स को भूल गए, तो इसलिए मतलब it was like really funny, but हाँ मतलब disheartening as well. So that was and like their family members, they used to attend him, and he wasn't able to recognize them कि वो कौन है and all that. ठीक है, so that is seen in case of Alzheimer's. And along with that we can see मतलब in case of Alzheimer's, this tendency of the person to forget things and all, that is called as dementia. So again it is a set of symptoms, and there can be different types of symptoms that can be seen in case of dementia. Mainly the poor memory, the person has this tendency to forget, difficulty in learning, damage of the brain cells because of variety of diseases. So basically all this tendency to forget and the difficulty in learning new things and all that is called as dementia, and dementia can be seen in case of Alzheimer's. I hope we are clear till now. Yes, sir. Okay, and likewise there is another term that is called as delirium. Delirium basically means the fluctuation in the mood of the person throughout the day. So we can see that there can be like it occurs suddenly and can
fluctuate during the day. So there can be hyperactive delirium, hypoactive, and mixed state. It means ki hyperactive means the person is hyperactive. Along with Alzheimer's, we can see the person might show delirium, where the person, if the individual shows hyperactive delirium, it means that the person has this tendency to become hyperactive, and there can be incorrect speech and disorganized thoughts. Along with that hypoactive, where the person is becoming drowsy and the person is slowing down, and the person is becoming hallucinated and all that, that is called as hypoactive, and the person is less reactive. And इसके अलावा mixed state, of course, like a mix of both, the hypo, sometimes hyper, you know, that is called as mixed state delirium. So the person can sometimes show hyperactivity, sometimes the person can show slowed down activity and drowsy activities, that is called as hypodelirium. And apart from that, the mixed state delirium can also be seen, and that is again seen in case of Alzheimer's. So dementia and delirium, that can be seen as a whole in case of Alzheimer's, and Alzheimer's is particularly a disease. Okay, I hope till now we are clear. Mainly just remember this particular term, because they have asked this question in some exam in case of Alzheimer's, which is the protein that is responsible. So that is the amyloid precursor protein, that is important. Okay, ठीक है? Yes, sir. Okay, should I move forward? Okay, coming up to the poliomyelitis. Okay, अब इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखते हैं. Poliomyelitis is upper motor or lower motor? The lower motor. It is lower motor. I don't know कि आप लोगों ने देखा अभी के टाइम पे is India like polio eradicated or not, polio free or not? Yes. Yes, and it is completely polio free. But like, do you remember अगर आपने मतलब ट्रेन से अगर आपने ट्रैवल किया हो काफ़ी या कुछ, तो इसमें हम देखा होगा पहले के टाइम पे, अभी नहीं होता, लेकिन पहले के टाइम पे there used to be these beggars and all that, like who had poliomyelitis and all that. तो मतलब आपको देखने को मिलते थे पहले. आई डोंट नो कि आपने देखा है कि नहीं, बट देखा है किसने, या फिर वैसे आपने कोई पोलियो केस देखा हो, है ना? तो मतलब यहाँ पे न्यू दिल्ली स्टेशन पे तो काफ़ी होते थे, मतलब like they used to beg for money, and they used to have this poliomyelitis mainly in the lower limb. तो मेनली होता क्या था कि मतलब अगेन देयर their legs used to be in again this particular position जहाँ पे वो मतलब it is in lateral rotation, it is in flexion and all that, and the knees were also flexed, and of course you can see the degeneration of the muscles, है ना? The muscle atrophy आप देख सकते हो वहाँ पे easily, and the girth of the legs is not in proportion with the rest of the body, है ना? So that can be seen, that is seen in case of poliomyelitis. So mainly we can see, जैसे आपने बताया, it is a lower motor neuron lesion. अगर लोअर मोटर है, इट मीन्स द पेरिफेरल नर्व्स आर गेटिंग अफेक्टेड, एंड अलॉन्ग विद दैट मेनली अगर हम देखते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड में इट इज द कौन सा हॉर्न, एंटीरियर की पोस्टीरियर, अगर मोटर नर्व्स, एग्जैक्टली इट इज द, हाँ है ना, इट इज द एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ से हमारी मोटर नर्व्स निकलती है कि उसकी तरफ आती है, निकलती है, एग्जिट करती है ना, हाँ एग्जैक्टली. तो मोटर नर्व्स एग्जिट करती है फ्रॉम एंटीरियर हॉर्न्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, बिकॉज वो ब्रेन से आ रही है थ्रू अलोंग द स्पाइनल कॉर्ड, एंड इवेंचुअली वो एंटीरियर हॉर्न से एग्जिट करेगी टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव मसल्स. तो ओके, तो वी कैन सी दैट if the anterior horn is getting affected, है ना, तो in that case of course the motor nerves will get affected, कौन से, peripheral वाली, and because of that we can see कि there will be a motor nerve motor function deficit in the person, ना. So okay, so mainly we can see it is because of a poliovirus, or you can say the enterovirus or a poliovirus that affects invades the person, and mainly you can see it goes into the intestine. So mainly it will find its most suitable environment in the intestine, okay? And you can see that it is a single stranded RNA virus. So it goes into the intestine. In the intestine it stays there and it replicates. वहाँ पे replication होता है, and then eventually with the flow of the blood and all that, तो blood vessels के साथ में it travels, and आपने देखा होगा, मतलब हमने एक term use किया था बायोमैकेनिक्स में, बार्टन्स प्लेक्सस, है ना, मतलब जो आपका वर्टिबल कॉलम के आसपास पड़ा होता है एंड वो सब. तो यू कैन सी कि इट सप्लाइज मेनली द मेनिस्कस एंड ऑल दैट. यू कैन सी थ्रू दैट दिस एंटेरोवायरस इट ट्रेवल्स अप टू द स्पाइनल कॉर्ड, एंड इवेंचुअली इट कैन एंटर the spinal cord, and it can mainly affect the anterior horns of the spinal cord. So अगर anterior horn अगर affect कर दिया, तो in that case we can see
that therefore the motor nerves are getting affected, which eventually lead to muscle atrophy. Okay, ठीक है, आई होप वी आर क्लियर टिल नाउ किस तरह से हमारा Yes, sir. वायरस है ना अफेक्ट कर रहा है, एंड देन इवेंचुअली इट स्टेज इन द इंटेस्टाइन एंड देन इवेंचुअली अफेक्ट द एंटीरियर हॉर्न्स. ओके, इसमें इसमें एक टर्म आता है, एक तो पोस्ट पोलियो सिंड्रोम, या फिर इसको हम ऐसे कहते हैं ना PPRP, पोस्ट पोलियो रेसिडुअल पैरालिसिस. ने टर्म सुना है आप सबने? Yes, sir. इसमें एक ग्राफ ही बनता है, पोस्ट पोलियो रेसिडुअल पैरालिसिस. हाँ, ये आई होप वो ग्राफ आ जाए. नहीं, वो वाला ग्राफ नहीं गया. चलो कोई नहीं, अगर हाँ ये वाला है, हम एग्जैक्टली देखो, वी कैन सी लाइक दिस इज द लाइक वाई एक्सिस पे इट शोज द पैरालिसिस एंड एक्स एक्सिस पे इट शोज आई थिंक मे बी टाइम और समथिंग. तो वी कैन सी, हाँ इट इज़ द टाइम है ना. तो 6 months एंड 18 months इस तरह से दिखाया गया है, एंड वी कैन सी इन द बिगिनिंग like it was normal, and then we can see with time it increased the amount of paralysis जो है, because हमारा anterior horn जो है it got affected, and because of that हमारा जो सीवियरिटी ऑफ जो पैरालिसिस है इट इंक्रीज है ना, मोटर डीजनरेशन जो है डेट इंक्रीज, एंड इवेंचुअली आफ्टर सम टाइम इट डिक्रीज. लेकिन मतलब हमारा हमारा बॉडी जो है इट लाइक हील्स इटसेल्फ एंड इट अगेन डिक्रीज. बट वी कैन सी दैट इट इज़ नॉट हील्ड प्रॉपरली, कंप्लीट हीलिंग नहीं देखने को मिलती. तो इन केस ऑफ पोलियोमाइलिटिस इन द इनिशियल फेज यू विल सी अ वर्स्ट, like the worst phase of that condition, जहाँ पे amount of paralysis जो होगा it will be maximum paralyzed, and then after some time we'll see that it becomes a bit better, but still not completely, like it is not completely healed. And after some time we will see कि it becomes parallel to the x-axis. It means कि with time there is this amount of paralysis जो कि continuously रहेगा, and that is called as post polio residual paralysis. मतलब पोलियो के बाद में there will be some amount of paralysis which will be like which will remain there continuously. So that is called as post polio residual paralysis. ठीक है, just remember this term. So that is the post polio syndrome. ठीक है, and collateral and other healthy neurons attached to the muscles which when die naturally due to aging process, so new are not formed. So that is called as post polio syndrome. And along with that there is another important term that is called as floppy baby syndrome. Again, floppy baby syndrome is a term specifically related to the poliomyelitis. देखो ऐसे ऐसे हमने काफ़ी मतलब जो मतलब इम्पोर्टेंट टर्म्स, जैसे हमने एक टर्म पढ़ा था इंटरनल गिब्बस, किसी को याद है हमने कहाँ पढ़ा था? The vertebral. हाँ हाँ, किसमें? टीबी ऑफ द वर्टिब्रल पॉट्स डिजीज में ना, हाँ पॉट स्पाइन में. तो बेसिकली वी सॉ इन दैट केस वी सॉ देयर वाज इंटरनल गिब्बस. ऐसे ही मतलब देयर आर सर्टेन टर्म्स जो कि उसी कंडीशन को से रिलेटेड है. तो वो टर्म अगर आपके सामने आते तो यू मस्ट डायरेक्टली अंडरस्टैंड कि वो किस कंडीशन की बात किया जा रहा है. तो ऑफकोर्स अगर पोलियोमाइलिटिस हम देख रहे हैं कि इट इज़ अ लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, तो यहाँ पे मसल टोनिसिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज और डिक्रीज? The muscle should decrease, no? The muscle should become flaccid, not spastic ना. तो if it is becoming flaccid, it means कि muscle tone जो है वो बिल्कुल कम हो गया है ना. तो it means कि that leads to this condition that is called as floppy baby syndrome है ना, where the infant develops acute flaccid paralysis. So floppy baby means कि again the child is like really floppy. Floppy means कि it is like not that strong or not that stiff ना. So that is called as floppy. The floppy baby syndrome, that is called as the child has this floppy baby syndrome because there is this flaccidity of the muscles that we can see after paralysis. And sometimes there might be vaccine derived paralytic polio as well. Can we call this as iatrogenic in nature, है ना? हमने एक टर्म पढ़ा था iatrogenic है ना. तो we can say that again because of medical intervention, if the person develops this condition, that is called as iatrogenic. It means that it is iatrogenic in nature, this particular condition where it is derived from vaccine है ना. Okay, so it like sometimes it can be seen because of vaccine, but mostly because of the affection of the enterovirus है ना. Okay, so that is basically the poliomyelitis. कुछ रहा तो नहीं हमारे इसमें. I hope we are done with the poliomyelitis. सर हाँ हाँ सर ट्रिपल डिफॉर्मिटी क्या होता सर?
पोलियो में दिखता बोल के ट्रिपल डिफॉर्मिटी इसमें अगेन वो जो मैं बता रहा था ना, आई थिंक देर इज हिप जॉइंट पे फ्लेक्शन, नी पे फ्लेक्शन एंड देन लैटरल रोटेशन ऑफ द हिप जॉइंट, यही है. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. आई थिंक मतलब क्या होता है सर, ट्रिपल डिस्लोकेशन ट्रिपल होती है वो क्या हाँ, है? ट्रिपल डिफॉर्मिटी मेनली आपका लेग से रिलेटेड होता है. मतलब कि जो लोअर लिम्ब होता है, लोअर लिम्ब एक पर्टिकुलर टाइप की प्रेजेंटेशन में आ जाता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रिपल डिफॉर्मिटी. बट किस तरह का प्रेजेंटेशन होता है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ट्रिपल डिफॉर्मिटी इन पोलियो. हाँ ओके. हाँ देखो ये है ना, नहीं नहीं नहीं, एज अ होल मतलब लोअर लिम का प्रेजेंटेशन होता है ना, मतलब लोअर लिम कम्स इनटू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, दैट इज कॉल्ड एज ट्रिपल डिफॉर्मिटी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. हाँ ये है ना, देर इज दिस फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन. डिफॉर्मिटी इन द हिप जॉइंट कॉमनली है ना, दैट इज द फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफन इन कॉम्बिनेशन ना. एंड दैट इज लाइक दैट कैन बी कॉल्ड एज ट्रिपल डिफॉर्मिटी कि नहीं, या फिर व्हाट इज ट्रिपल डिफॉर्मिटी ऑफ द सर नी. सर नी में अच्छा बोलते अच्छा हैं ओके, सर। मेनली ओके ओके ओके, मेनली हाँ, ट्रिपल डिफॉर्मिटी इज रिलेटेड टू नी. हाँ ओके, तो मेनली वी कैन सी द प्रेजेंटेशन इज समथिंग लाइक दिस ना, जैसे मतलब इस टाइप का देख रहे हैं हम प्रेजेंटेशन ना. हाँ कि मतलब जहाँ पे हिप जॉइंट हैज कम इनटू अ पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन, उसके बाद नी का एक पर्टिकुलर टाइप का है, तो दिस इज द टाइप ऑफ थिंग दैट वी लाइक द पोजिशनिंग ऑफ द लोअर लिम्ब दैट वी कैन सी इन केस ऑफ पोलियोमाइलिटिस. तो मेनली लाइक हाँ, ट्रिपल प्रेजेंटेशन जो है दैट इज रिलेटेड टू द नी ना, जहाँ पे क्या इट शोज दिस थिंग, एक्सटर्नल रोटेशन, फ्लेक्शन एंड नहीं नहीं हाँ यही है ना, नहीं नहीं जस्ट हाँ ये है एक्सटर्नल रोटेशन, वैल्गस एंड देन देर इज फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ऑफ द नी, है ना, विथ posterior subluxation of the tibia, that is basically the triple deformity. Okay, हाँ ठीक है, ट्रिपल डिफॉर्मिटी इज मेनली रिलेटेड टू द नी जॉइंट. ठीक है, ट्रिपल डिफॉर्मिटी इज रिलेटेड टू द नी जॉइंट, बट अलॉन्ग विद दैट विद एट द हिप जॉइंट ऑल्सो वी कैन सी देर इज क्या, एबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन एंड फ्लेक्शन दैट वी कैन सी. ठीक है, आई थिंक यही है. विटल ठीक बोल रहा हूँ मैं, यस सर। है ना, इट इज लाइक ट्रिपल वो डिफॉर्म. कंफर्मेशन है सर। हाँ क्या वो चीज़. उसमें हम्म, नहीं था इसलिए बोलिए। हाँ ट्रिपल डिफॉर्मिटी. अगेन ये सारे टर्म्स ना मेरे को एकदम मतलब तब याद आते हैं जब मैं पढ़ रहा था उस टाइम पे, लाइक आई केम अक्रॉस दिस टर्म, कहीं ना कहीं मैंने ये पढ़ा था ट्रिपल डिफॉर्मिटी. तो हाँ, ट्रिपल डिफॉर्मिटी कैन बी सीन इन नी, लेकिन इसके अलावा हिप जॉइंट पे भी देर इज दिस फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड लैटरल रोटेशन. ओके ठीक तो है. ये किस कंडीशन में देखने को मिलता है? ये आपको पोलियोमाइलिटिस में ना जो हम पढ़ रहे हैं. एक ऑप्शन था पोलियोमाइलिटिस, टीबी ऑफ रूमेटोइड अर्थराइटिस ऐसा लिखा. हाँ क्या चीज़. तो टीबी ऑफ हिप में भी देखने को मिलता है, क्वेश्चन था उसमें आंसर था. टीबिया किस में देखने को मिलता है. टीबी ऑफ हिप. टीबी ऑफ हिप में भी देखने को मिलता है आपको, मतलब ऐसी डिफॉर्मिटी. तो देखो मेनली जब हमने हिप जॉइंट की हम बात कर रहे थे, मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि देखो यहाँ पे फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, डोंट यू थिंक ये हमारा फ्लॉक्ड पोजीशन है. मतलब अगर टीबी ऑफ हिप जॉइंट है, कोई भी ऐसा अगर हो रहा है कंडीशन जहाँ पे हिप जॉइंट की स्टेबिलिटी अफेक्ट हो रही है, तो वहाँ पे हिप जॉइंट सबसे पहले अपने पोजीशन वो वाली अटेंड करेगा ना जहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी. तो in that case it will attain this flexion, abduction and lateral rotation ना, that is the frog leg position. तो कोई भी कंडीशन इन एंड अराउंड द हिप जॉइंट अगर होता है जहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी इफेक्ट होगी, इट विल लाइक इट इज़ बाउंड टू अटेन दैट पर्टिकुलर पोजीशन ना, दैट फ्रॉग लेग पोजीशन, ताकि वहाँ पे मैक्सिमम आर्टिकुलेशन रह पाए हिप जॉइंट पे. ठीक है. यस सर. ओके ओके ठीक है. एंड इसके Yes, अलावा okay. हाँ हाँ ठीक है, इसके अलावा ट्रिपल डिफॉर्मिटी आपका नी जॉइंट पे जो लिखा है, पोस्टीरियर टिबियल ट्रांसलेशन, इसके अलावा क्या था, फ्लेक्शन एंड देन देर इज वैल्गस एज वेल, वैल्गस ऑल्सो दैट कैन बी सीन इन केस ऑफ नी. ठीक है, दैट इज द ट्रिपल डिफॉर्मिटी ऑफ द नी. ठीक है, तो ट्रिपल डिफॉर्मिटी ऑफ हिप जॉइंट पे अगर वो टर्म यूज़ करते हैं तो हिप जॉइंट पे हमारा फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन. ठीक है, तो इस तरह से आई थिंक हिप जॉइंट पे तो कोई भी कंडीशन अगर है तो इन दैट केस फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड लैटरल रोटेशन की हम बात करेंगे, अगर पर्सन उसको स्टेबिलिटी, अगर वहाँ पे स्टेबिलिटी इफेक्ट हो रही है उसकी, है ना. ठीक है. ओके सो आगे बढ़ूँ मैं. यस सर. ठीक है. ओके, कमिंग अप टू द जीबीएस. ठीक है,
GBS that is गुलियन बेरी सिंड्रोम. गुलियन बेरी सिंड्रोम में अगेन जैसे हमने यहाँ पे फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम पढ़ा या फिर पोस्ट पोलियो पैरालिटिक सिंड्रोम जो कि PPRP जो है वो हमने पढ़ा. लेकिन अब इन केस ऑफ GBS में आपका एक टर्म आपको मेनली याद रखना है, दैट इज टोज टू नोज. इट मीन्स दैट इट डेवलप्स like it starts again you can say like is it lower motor or upper motor. ये सब आपको याद करने पड़ेंगे सबके सब कंडीशंस के नाम की. मतलब ये कंडीशन हाँ लोअर मोटर सर. इट इज कौन सा लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन. it is lower motor neuron. हाँ it is lower motor neuron lesion वहाँ पे where the nerves are getting affected and all that. मेरे को लगा आप upper motor बोल रहे हो. लोअर ही बोल रहे हो ना. लोअर सर है ना. ओके मेरे को लगा शायद आप अपर मोटर बोल. ओके तो it is a lower motor neuron lesion again where the like the peripheral nerves are getting affected. Mainly it like toes to nose again, like it means that it starts from the hand, or you can say it starts from the periphery of the body and then eventually it goes like it develops up to the proximal. लेकिन इसके अलावा जितने भी हम conditions की बात करते हैं like let's say spinal cord injury है या फिर कोई भी nerve injury है कहीं पे भी, it develops like at a particular region and then it goes up to the distal part of that nerve है ना. तभी हम देखते हैं कि let's say अगर forearm region पे हमारी nerve अगर affect हो गई तो eventually like उस time पे तो हम मे बी अपना hand use कर पा रहे होंगे, fingers use कर पा रहे होंगे, लेकिन after some time we will see जब हमारा क्या कहते हैं जो मतलब वो कंप्लीट हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, वॉलेरियन डीजनरेशन. ये टर्म सुना है आपने, वॉलेरियन डीजनरेशन जब हमारा है ना कंप्लीट हो जाता है, इट टेक्स कितना 14 days. हाँ 14 days एग्जैक्टली. इट टेक्स 14 days. इट टेक्स 14. ये भी क्वेश्चन आई थिंक सूरज कुमार में है ना. ये टेक्स 14 है ना 14 days टू कंप्लीट द वॉलेरियन डीजनरेशन. एंड वॉलेरियन डीजनरेशन मीन्स कि एक जगह पे अगर मेरा नर्व अगर इफेक्ट हो गया है तो आफ्टर दैट वी विल सी कि आफ्टर सम टाइम हमारा जो वो नर्व है वो पूरा का पूरा अपने पेरिफेरी तक इफेक्ट हो जाएगा एंड इवेंचुअली दैट लीड्स टू द डिफॉर्मिटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स डिस्टल टू द रीजन जहाँ पे वो इफेक्ट हुआ है. तो दैट इज कॉल्ड एज वॉलेरियन डीजनरेशन एंड बट इन दिस केस वी कैन सी इट डेवलप्स एट द डिस्टल रीजन एंड देन इट गोज प्रॉक्सिमली. तो मेनली इट कैन बी बिकॉज ऑफ GI, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ना. एंड दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ दिस. जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द पैथोजन, दैट इज द Campylobacter jejuni है ना. तो jejuni means again the region of the intestine है ना. We have got क्या structures होते हैं, parts होते हैं of the small intestine. Duodenum, ileum, jejunum. Duodenum, ileum, jejunum है ना. तो the jejunum region ना, Campylobacter jejunum. तो mainly it is because of food contamination. और ये term ऊपर भी आया था पोलियो में, that is feco-oral route. feco-oral route है ना, यहाँ पे भी term आया था. तो it means feco-oral transmission of this thing. So it means कि like if there is this presence of the fecal matter है ना, or like in the food or the water that we are intaking है ना, and then because of that like it because of that there is transmission of these pathogens into the body. Maybe the enterovirus जो कि आपको like poliomyelitis cause करेगा, या फिर there can be this Campylobacter jejuni का transmission into the body which can lead to the GBS and all that. So mainly because of feco-oral contamination of food, or you can say maybe because of unpastured milk है ना, or the contaminated water. So because of that there is a transmission of these pathogens into the body that can lead to these conditions. So mainly from toes to nose it develops at the distal region and then it goes proximally. And again we can see that if it is a lower motor neuron lesion, there has to be a flaccidity and not the spasticity, and there is damaged peripheral nerves and autoimmune it can be autoimmune demyelination and all that things that we seen. Again we can see, देखो सारी conditions में अगर हम देख रहे हैं, अगर आप ऐसे होल देखोगे मतलब न्यूरो में जितने भी कंडीशंस है सब में ऑफ कोर्स नर्व्स आर गेटिंग अफेक्टेड, लेकिन कौन सी नर्व, या मतलब पेरिफेरल नर्व्स है या स्पाइनल कॉर्ड है या फिर ब्रेन है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं नर्व इफेक्ट हो रही है एंड उसका रीज़न क्या है, उसकी वजह से हम अलग अलग कंडीशंस की बात करते हैं और कुछ नहीं. मतलब लेट्स से अगर कोई मतलब वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड अगर डायरेक्टली लाइक कोई ट्रॉमा की वजह से इफेक्ट होगा तो वहाँ पे हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अगर उसको कह देते हैं. अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि ट्रांसफ़र कर रहा है थ्रू आउट द मतलब एक हेमी सेक्शन से दूसरे हेमी सेक्शन की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स माइलाइटिस. अगर एक ही हेमी सेक्शन इफेक्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज आपका दैट थिंग ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम. हाँ ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम. तो अलग अलग रीजन्स कौन कौन से इफेक्ट होते हैं एंड उसका रीज़न क्या है इफेक्ट होने का, दैट इज़ लाइक उसके अकॉर्डिंग हम उनको अलग अलग कंडीशंस बोल देते हैं. लेकिन इवेंचुअली वी कैन सी
सब में आपका जो है नर्व्स आर गेटिंग अफेक्टेड एंड अलॉन्ग विद दैट वी कैन सी देर इज दिस न्यूरो डिजनरेशन ऑफ कोर्स न्यूरो डिजनरेशन दैट कैन बी सीन इन केस ऑफ ऑल द न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस ना एंड देन वी कैन गो फॉर द लंबर पंचर कैन एनीवन टेल मी कि लंबर पंचर में हम कर क्या रहे होंगे CSF करते हैं हाँ मेनली है ना वी ट्राई टू एक्सेस द CSF इन द लंबर रीजन में फ्रॉम द सेंट्रल कैनाल है ना एंड देन लाइक वी कैन सी दैट देयर इज इंक्रीज्ड WBC per cubic mm तो बेसिकली व्हाट वी सी दैट अगर 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 मतलब इफ द लाइक इफ देयर इज दिस पैथोजन दैट इज अफेक्टिंग द पर्सन अफेक्टिंग द बॉडी तो इन दैट केस द पर्सन्स वाइट ब्लड सेल्स जो होता है ना मतलब दे स्टार्ट एक्टिंग अगेंस्ट द पैथोजन्स ना तो इन दैट केस ऑफ कोर्स these cells will become hypertrophied or you can say their density will increase and because of that अगर उनकी density increase कर रही है and along with that they are also increasing in number because as a response of the body like now the body is trying to act against these pathogens ना तो अगर उसके against अगर act कर रहा है तो in that case of course there will be an increase in the number of WBCs per cubic mm ना and इसके अलावा there will be an hypertrophy of these structures as well so WBC will increase as a whole so that can be seen in case of lumbar puncture ना that is the diagnostic procedure for this इसके अलावा we can also see that कोई भी पैथोजन अगर अफेक्ट करता है बॉडी को कोई भी पैथोजन अगर अफेक्ट कर रहा है तो इन दैट केस हम ESR भी चेक करते हैं ना एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट again that will also that is also supposed to increase in majority of conditions अगर हमें ये नहीं भी मतलब हमने नहीं भी पढ़ा हुआ still we can see अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास आता है जहाँ पे लिखा है कि will the erythrocyte sedimentation rate will increase or decrease in case of any pathogenic condition so of course in most of the conditions it is supposed to increase because again as a response to the this thing as a whole हमारा जो blood cell set will increase in density and all that so because of that its density will increase and उसका sedimentation rate जो होगा it will increase ना that is the ESR rate जो है होगा वो increase कर जाएगा तो कोई भी infectious disease कुछ होती है तो in that case it increases the ESR as well as the number of WBCs per cubic mm ठीक है and mainly remember it starts at the peripheries and then it goes upwards it goes proximally and because of that we can see a majority like different nerves जैसे अगर हमारा like paresthesia हो सकता है weakness flaccid paralysis हो सकता है areflexia of course because lower motor affect हो रहा है respiratory these muscles can also get affected all that तो different nerves कौन सा nerve affect हुई है because of Campylobacter jejuni and because of that कौन सी muscles हमारी है ना myocardium affect हो रहा है या फिर हमारी urinary retention अगर हमारा urinary bladder में अगर if it like it is getting affected and all that तो that can be seen तो दैट लाइक अकॉर्डिंगली हमारा कौन सा नर्व अफेक्ट हो रहा है उसकी वजह से कौन सा मसल्स अफेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ दैट कौन सा फंक्शन या कौन सा सिम्टम्स हमें पर्सन में देखने को मिलेगा तो इट मीन्स कि GBS के केस में हमें अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सा रीजन अफेक्ट हो रहा है बट मेनली इट स्टार्ट्स इन द पेरिफेरीज एंड इट हैज दिस टेंडेंसी टू स्प्रेड प्रॉक्सिमली है ना एंड मेनली बिकॉज ऑफ Campylobacter jejuni एंड इंक्रीज्ड WBC per cubic mm आई होप वी आर डन विद दिस कंडीशन ठीक है शुड आई मूव फॉरवर्ड okay we have talked about trigeminal neuralgia as well है ना जहाँ पे हमने देखा था कि trigeminal nerve which has got both motor as well as sensory functions ना तो it is getting impinged it is getting compressed because of a particular artery that is the superior cerebellar artery which comes from the basilar artery is a continuation of two vertebral arteries na and because of that compression we can see the trigeminal nerves it is getting compressed and because of that there is a sudden pain है ना sudden pain on the face में sudden pain आ सकता है and paroxysmal pain you can see again that is the sudden sharp shooting pain in the face that is called as the trigeminal neuralgia and it is not a serious complication like the 7th cranial nerve affection or the 8th cranial nerve तो 8th cranial nerve अगर affect हो रहा है in that case we can see the person can go into like hearing loss or there can be tinnitus can anyone tell me tinnitus क्या होता होगा ये तो हम सुना किसी ने हाँ निशा कुछ बोल रहे थे कान में ना बेल लाइक साउंड कंटिन्यूसली हाँ एक कंटिन्यूस साउंड अगर इवन अगर आप लोगों ने कभी अगर कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया हो कभी अगर कभी मतलब कोई चीज़ तेज से ब्लो करती है हेड पे या फिर तो उस टाइम पे भी कंटिन्यूसली देयर इज दिस
this मतलब ringing sound you can see in the ears जो कि कुछ टाइम के लिए रहता है. तो in case of like deafness, तो deafness में भी tinnitus कई बार रहता है person को. तो in that case continuously that is there is this ringing sound जो कि ear में रहता है, and because of that it might become even frustrating for the individual. So that is called as tinnitus. Tinnitus is this continuous. सर इसमें कोई फिजियोथेरेपी रोल होगा? tinnitus के केस में आई डोंट थिंक कि इसमें मतलब बिकॉज हाँ इसमें फिजिकल डिफॉर्मिटी की हम बात नहीं कर सकते ना. मतलब देखो जैसे जैसे हम अगर हमारा काम जो है वो फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ मतलब कि कोई भी फिजिकल डिफॉर्मिटी को लेके तभी इट इज़ कॉल्ड एज फिजियो या फिजिकल थेरेपी ना. तो इसमें मतलब मेनली ओके सॉरी फॉर दैट. आई वाज सेइंग कि इसमें कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी नहीं रहती है ना. मतलब वी कैन सी कि मेनली जैसे हो सकता है कि जैसे अगर बैलेंस पर्सन का इफेक्ट है ना, वर्टाइगो में पर्सन जा रहा है ना उसमें, तो स्टिल फॉर दैट वी कैन गो फॉर सर्टेन मैन्यूवर्स. लेकिन टिनाइटस अगर है तो टिनाइटस के केस में वी कांट लाइक हेल्प मच इन दैट पर्टिकुलर केस ना. और इवन इन केस ऑफ हियरिंग लॉस में हम क्या कर लेंगे. मतलब हियरिंग लॉस में वी कांट गो फॉर एनी लाइक मच ऑफ द लाइक हेल्प टू द पेशेंट ना. ठीक है, बट यू मस्ट रिमेंबर, यू मस्ट नो दिस कंडीशन द टिनाइटस ना. ठीक है, okay, so that can be seen in case of cranial nerve 8 affection. Okay, that is basically trigeminal neuralgia. Okay, and mainly मतलब क्यों in the elderly individuals क्यों हमें देखने को मिल रहा है, because with the passage of time we can see because of gravitational force जो कि continuously आता है, there is this sagging down of these structures. Because of that it can lead to the compression of the trigeminal nerve है ना. Okay, likewise okay, we can talk about the peripheral nerve injury as well. The peripheral nerve injury again of course it is supposed to be a lower motor neuron lesion जहाँ पे we can talk about this Wallerian degeneration. इसके अलावा there are 3 types of injuries of the nerve. कोई बता सकता है नाम? 3 different. न्यूरोप्रेक्सिया, एक्सोनोटोमेसिस, न्यूरोटोमेसिस. हाँ न्यूरोप्रेक्सिया आई थिंक सबने एक्सपीरियंस किया होगा है ना. जब like if you are sitting continuously for a long period of time and there is compression of a particular nerve, तो वहाँ पे आप देखोगे कई बार इवन इतना ज़्यादा हो जाता है कि इवन बिल्कुल like you're not like able to use the muscle at all. And in that case मतलब मेरे साथ एक बार हुआ था जब लेग में बिल्कुल ही मोटर कंट्रोल चला गया एंड उसके बाद में यू नीड टू लिफ्ट इट विद योर हैंड. लेकिन ऑफ कोर्स फॉर्चुनेटली कुछ टाइम के बाद में वो वापस रिगेन हो जाता है. बट देयर इज कंप्रेशन ऑफ द नर्व टू दैट एक्सटेंट कि वहाँ पे मतलब देयर इज दिस नर्व सप्लाई विच गेट्स अफेक्टेड. एंड इन दैट केस फॉर सम टाइम मे बी यू कैन एक्सपीरियंस कि जो पैरालाइज पेशेंट होते हैं उनका किस तरह से रहता होगा, लाइक हाउ दे आर नॉट एबल टू यूज देयर लिम्ब है ना इन दैट केस. तो that is neuropraxia. इसके अलावा there is this exanthemosis where we can see not there is not a complete lysis, complete transection नहीं है nerve का, but we can see still there is this nerve that is getting severed, the nerves getting severed ना, and nerves getting affected जहाँ पे you can see that maybe the outer region nerves के अलग अलग layer होते हैं ना, perineurium, endoneurium and क्या होता है myoneurium ना, एपिन्यूरियम सॉरी, पेरिन्यूरियम, एपिन्यूरियम एंड एंडोन्यूरियम. ये तीन लेयर्स होती है नर्व की है ना. नर्व्स की 3 लेयर्स होती है एंड वी कैन सी इफ अ पर्टिकुलर लेयर if it is getting affected but not the complete nerve, so in that case we can say that is axonotmosis. And of course in case of crush injury, and of course it has got a better prognosis than the neurotmosis, but in case of neurotmosis we can see there is this complete cutting of the nerve, completely it has got cut, and because of that there is like the complete loss of function of the जो कि उस nerve का था, and that is the called as neurotmosis ना, complete transection of that particular nerve. And likewise we can see अगर neurotmosis of spinal cord हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड का न्यूरोटमेसिस हो रहा है, मतलब कि देर इज कंप्लीट ट्रांसेक्शन, कंप्लीट दिस थिंग कटिंग ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, दैट कैन लीड टू कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है ना. इसके अलावा अगर उसका एक्सोनोटोमोसिस हो रहा है तो इन दैट केस वी कैन सी कि सम ट्रैक्स आर स्टिल इंटैक्ट एंड कुछ ट्रैक्स है जो कि एफेक्ट हो गए, तो इन दैट केस वी कैन कॉल इट एज इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है ना. एंड ये हम फिगर आउट कर रहे थे कहाँ से, एशिया स्किल में ना. एंड इसके अलावा हमने कुछ स्पेशल कुछ टेस्ट की भी बात करी थी जहाँ से हम फिगर आउट कर सकते हैं कि कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है कि नहीं. क्या क्या टेस्ट थे, किसी को याद है? बल्बो कैवर्नस रिफ्लेक्स था, अपवर्ड ही स्केल,
क्या चीज़? सर modified बल्ब क्या है रिफ्लेक्स हाँ एनल रिफ्लेक्स हाँ एनुअल रिफ्लेक्स था। हाँ निशा आप क्या बोल रहे हो? मैं समझा नहीं। स्केल का नाम बता रही थी। सॉरी मैं समझा नहीं, फिर से अब एक बार क्या? स्केल का नाम स्केल, बोल रही थी सर। स्केल का, ओके ठीक है ठीक है। कौन सा, एशिया स्केल का? स्वर्थी स्केल। ओके ओके ठीक है। ओके, तो वी कैन लाइक टॉक अबाउट दैट, एंड अलोंग विद दैट एक था ना, और क्रेमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स ना, हाँ क्रेमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स, क्रेमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स है ना, क्रेमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स के बारे में भी वी कैन टॉक अबाउट दैट आल्सो, दैट कैन आल्सो लीड टू like they can also be used to figure out whether there is complete or incomplete spinal cord injury. Okay, and the last thing, last condition, that is the bulbar palsy and the pseudobulbar palsy. तो eventually हमने 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 bulbar term किसके लिए यूज़ किया था? अगर कोई भी कंडीशन में अगर बल्बर पालसी या कोई भी बल्बर अगर टर्म आ रहा है तो इट मीन्स या फिर कॉर्टिको बल्बर या रूब्रो बल्बर जो भी है, तो ब्रेन स्टेम। हाँ ब्रेन स्टेम एग्जैक्टली है ना, वो ब्रेन स्टेम से रिलेटेड है। कोई भी चीज़ अगर उसमें ब्रेन स्टेम अगर आ रहा है तो इन दैट केस हम बल्बर टर्म यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे वी कैन सी बल्बर एंड सूडो बल्बर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी बल्बर पालसी जो है, बल्बर पालसी सपोज टू बी ए लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, सॉरी, and pseudobulbar palsy जो है that is supposed to be an upper motor neuron lesion, because in case of pseudobulbar palsy we can see the corticobulbar tract is getting affected, and because of that we can see eventually that the condition, so we can see airway occlusion, because bulbar जो हमारा ब्रेन स्टेम है, that is related, वहाँ पे हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर भी प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई वी कैन सी स्पास्टिक पैरालिसिस, एक तो बिकॉज अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, and along with that we can see there can be spastic occlusion, the airway occlusion emergency, and along with that the bulbar palsy, that is a lower motor neuron lesion, जहाँ पे हमारा cranial nerves are getting affected mainly we can talk about 7th to 12th cranial nerves, and that can get affected, and that can further lead to the nerve, the structures जैसे हमारा pharynx and larynx and all that हो गया, जो कि हमारा affect हो सकता है, and that is called as bulbar palsy. तो bulbar is a lower motor neuron lesion जहाँ पे हमारा cranial nerves are getting affected, and pseudobulbar palsy is an upper motor neuron lesion जहाँ पे mainly हमारा corticobulbar tract, and because of that we can see the airway transmission जो है वो affect हो रहा है, airway occlusion जो है वो देखने को मिलेगा, that is called as pseudobulbar palsy. And then the last condition, that is called as pseudobulbar effect. The pseudobulbar effect can also be talked about. तो किसी ने देखा था, किसी ने देखी इसकी वीडियो या कुछ? अगर नहीं देखा तो यू कैन जस्ट सी दिस थिंग है ना ऑन यूट्यूब, तो देखना आप, मतलब अगर आपने मूवी नहीं देखी है, दिस लाइक रियली इंटरेस्टिंग। तो इन दिस केस अगेन द पर्सन हैज दिस टेंडेंसी of not only a controlled laughter but uncontrolled crying as well, ठीक है? तो there can be uncontrolled laughter or uncontrolled crying of the person, and that can be seen, again the exact reason is not unknown, but we can say that it can be secondary to stroke or maybe multiple sclerosis, और again जो हमारा ALS हो गया या traumatic brain injury हो गया, उसके secondary you can talk about this particular condition, and where we can see mainly the person has this tendency of uncontrolled laughter or uncontrolled crying, and that is called as pseudobulbar effect. तो नाम थोड़ा सा सिमिलर है तो इसलिए हमने pseudobulbar effect बोल दिया, लेकिन again the condition as a whole is altogether different, and mainly you can see like mainly the bulbar tract or bulbar structures are getting affected, but the exact cause is still unknown for this condition, ठीक है? आई होप वी आर डन विद ऑल द कंडीशंस, हमने काफ़ी सारे कंडीशंस को देख लिया है, एंड द मेजर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो हमने इसमें कवर कर ली है, एटलीस्ट जो हम स्किप आउट कर जाते हैं या फिर जो वो, तो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है, आगे आगे बढ़ूँ मैं? अभी Yes, टाइम sir. क्या हो गया? ओके अभी तो काफ़ी टाइम है, ठीक है। ओके so let's continue or start with the electrotherapy now. Okay, तो आई नो एकदम से हम एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे जंप कर रहे हैं, एंड इट माइट बी अ बिट दिस थिंग ट्रिकी या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, एक से हम दूसरे पे कर रहे हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि अभी जब हम दूसरे सब्जेक्ट पे अगर जा रहे हैं तो जस्ट लीव दैट न्यूरो असाइड ना, उसको एक बार पूरा पीछे छोड़ दो, एंड पूरा अभी हम इसके इलेक्ट्रो के ऊपर ही फोकस करते हैं, एंड देन यू कैन जस्ट जब आप उसको रिवाइज कर रहे हो उस टाइम पे लाइक यू कैन लाइक टॉक अबाउट दैट। तो ओके, तो कैन एनीवन टेल मी इलेक्ट्रोथेरेपी में एज अ होल हम क्या क्या पढ़ते होंगे? मतलब आप सब ने आई थिंक कब फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, या फिर आई थिंक आपके इसमें करिकुलम में हाफ फर्स्ट ईयर में होगा, हाफ सेकेंड ईयर में होगा, ऐसा कुछ है? सेकेंड ईयर में था। आपको सेकेंड मतलब कंप्लीट सेकेंड ईयर में था? हाँ। ओके ठीक है। हमारा फर्स्ट ईयर में था इलेक्ट्रो, एंड देन कंप्लीट इलेक्ट्रो, एंड उसके बाद एक्सरसाइज थेरेपी वाज इन सेकेंड ईयर।
ओके एंड ये मतलब ये मेरा बेसिक क्वेश्चन सबसे है कि मतलब इलेक्ट्रोथेरेपी में हम क्या क्या चीज़ें मतलब आपने आपने पढ़ी है या फिर क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं। एसडी को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? हम्म? विटल, अनामिका, पढ़ते शिवांगी। हैं सर। हाँ पढ़ते हैं एसडी कर्व। इसके अलावा जस्ट गिव मी सम टॉपिक्स ना, मतलब कुछ टॉपिक्स के नाम बताओ ना। US, SWD, हाँ IFT, TANS. एग्जैक्टली हाँ। इलेक्ट्रोलाइट। हाँ ऑल दिस इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज़। हाँ इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज़ हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज़ हमारी किस किस टाइप की होती होगी? एक तो इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़ होती है। इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज़ एज अ होल, जिसमें हाँ इसमें इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़ एंड इसके अलावा हीट मोडालिटीज़ होती है ना, है ना? यस हाँ सर। हाँ हीट मोडालिटीज़ होती है। जैसे कोई कुछ एग्जांपल बताओगे हीट मोडालिटीज़ का? SWD। SWD हो गया, MWD हो गया, माइक्रोवेव डायथर्मी। ठीक है, इसके अलावा हमारा और क्या क्या होता है? यूवी। थेरेपी MHT। हाँ मस्ट मॉइस्ट हॉट हॉट पैक। पैक, हाँ MHP हो गया, मॉइस्ट हॉट पैक हो गया उसका आपका। एंड इसके अलावा आपका यूवी हो गया, है ना? एंड यूवी लैम्प्स एंड ऑल दैट। तो ठीक है, तो ऑल दीज आर द मोडालिटीज दैट यू कैन यूज़ फॉर इलेक्ट्रोथेरेपी ना, फॉर हीट मेनली, है ना? इसके अलावा इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़ के कुछ आप नाम बता रहे थे। मसल स्टिमुलेटर। मसल स्टिमुलेटर हो गया, हाँ। IFT। हाँ टेंस। टेंस हो गया, आईएफटी हो गया। हाँ ठीक है। तो दीज आर ऑल द इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज़। इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज़ का यूज़ मतलब हम किस लिए करते होंगे? जैसे अगर 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 प्रिसाइजली मैं बात करता हूँ टेंस की या आईएफटी की, या तो अगर हम अभी मसल स्टिमुलेटर को अगर हम हटा देते तो आईएफटी एंड टेंस, तो मेनली उसका यूज़ क्या होता होगा? पेन कम करने के लिए। हाँ मेनली हमारा पेन रिडक्शन के लिए मेनली वो हमारा काम करता है। एंड लाइक दैट इज लाइक इज electrotherapy like sufficient for an individual like who is presenting pain? नो सर। है ना, इट इज़ नॉट सफिशिएंट। मतलब इट इज़ नॉट सफिशिएंट बिकॉज ऑफ कोर्स अगर अगर पेशेंट एक कंडीशन लेके आए, इट मीन्स कि उस कंडीशन का कोई भी सबसे पहले वो पेशेंट कंडीशन तब लेके आएगा जब उसके पास पेन होगा ना। अगर 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 कोई भी कंडीशन है, कोई भी डिफॉर्मिटी, लेकिन अगर पेन ही उसको फील नहीं हो रहा तो इन डैट केस वो कभी प्रेजेंट नहीं करेगा क्लिनिक में। तो अगर अगर वो आ रहा है तो इट मीन्स कि कोई ना कोई पेन या डिस्कम्फर्ट है बिकॉज ऑफ विच द पर्सन इज नॉट प्रेजेंट। तो इसका मतलब कि वो वी कैन सी कि कोई ना कोई रूट कॉज उस कंडीशन का होना ज़रूरी है बिकॉज ऑफ विच वो पेन राइज हो रहा है। तो फॉर लाइक बाय यूजिंग दिस इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज मे बी अ हीट मोडालिटी और समथिंग एल्स, तो वी कैन जस्ट गेट अ विंडो जहाँ पे हम वी कैन लोअर द अमाउंट ऑफ पेन ऑफ दैट इंडिविजुअल, एंड उस टाइम को हम यूज़ करके वी कैन फिगर आउट लाइक बाय यूजिंग आर असेसमेंट कि कौन सा रूट कॉज है उस कंडीशन के लिए। इट कैन बी मे बी इट कैन बी द डिस्क, इट कैन बी द मेनिस्कस, इट कैन बी जो भी है, मसल्स हो सकता है, नर्व इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कुछ भी। तो वी कैन टॉक अबाउट दैट एंड इवेंचुअली उसकी वजह से मतलब उसके लिए देन वी कैन प्रोवाइड ऑल दीज दैट टेक्निक्स एंड मे बी जो भी हम करते हैं, लाइक मे बी हम मोबिलाइजेशन की बात करते हैं या फिर हम सॉफ्ट टिश्यू रिलीज हो गया या फिर ट्रैक्शन हो गया, जो भी चीज़ें हम बात करते हैं, मसल स्ट्रेचिंग हो गया, ये सब। तो आखिर में ट्रीटमेंट तो सबका मतलब ये सेम है। मतलब आप बात करोगे स्ट्रेचिंग या फिर मे बी मसल स्ट्रेंथनिंग उसके कॉन्ट्रल उसके एंटागनिस्ट का, या फिर आपका मोबिलाइजेशन हो गया या सॉफ्ट टिश्यू रिलीज हो गया। लेकिन जो डिफरेंस क्रिएट करता है दैट इज़ कि आपको अगर डायग्नोसिस एग्जैक्टली पता है कि डायग्नोसिस क्या है, देन मतलब उसका रूट कॉज क्या है। हमें देखने को मिल रहा है कि मे बी रूट कॉज हमारी मल्टीफिडस है, एंड हम लगे पड़े हैं ट्रेपीजियस को रिलीज़ करने में। तो उस केस में नहीं होगा ना, मतलब उस केस में तो अगेन हम बोलेंगे हमने सॉफ्ट टिश्यू रिलीज प्रोवाइड किया लेकिन रिलीफ नहीं आया बिकॉज ऑफ कोर्स हमने डायग्नोसिस प्रॉपरली नहीं किया था। तो अगर आप डायग्नोस करते हो एंड उसके बाद आप एग्जैक्ट रूट कॉज पे अगर आप आ जाते हो एंड देन उसके बाद में हम अगर अपनी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, देन इट डजेंट मैटर कि हम जो भी एडवांस टेक्निक या कोई भी अगर अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हमें रूट कॉज पता है, देन हमारा जो जो ट्रीटमेंट होगा वो प्रिसाइज होगा, एंड उसके बाद में हमें ऑफकोर्स उसके रिस्पॉन्स में हमें इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा ना। ओके, तो दैट इज़ विद द इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज़। इसके अलावा इलेक्ट्रो में हम क्या पढ़ते होंगे? हम मतलब वी विल बी स्टार्टिंग विद द बेसिक्स ऑफ फिजिक्स में ना। बेसिक फिजिक्स मतलब कि आपने देखा होगा स्टार्टिंग ऑफ क्लेटन्स एंड नंदा या जो भी बुक्स है, आपने कौन कौन सी बुक आपने फॉलो करी है फॉर इलेक्ट्रो? Nanda. आपने नंदा करी है, और निशा आपने कौन सी करी है? जगमोहन एंड कौन सी? आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, पता नहीं मेरे को।
So Jagmohan and Khokhar. ओके ठीक है, जगमोहन खोकर, ओके ठीक है। इसके अलावा क्लेटेंस किसी की ने नहीं करी ना? क्लेटेंस में ऐसे मतलब थोड़ा मतलब क्लेटेंस अच्छी बुक है लेकिन क्लेटेंस में थोड़ा सा कम है मतलब कंटेंट एज कम्पेयर टू नंदा एंड ऑल। तो ठीक है, तो इसमें लाइक अब आप देखोगे सारी बुक्स में लाइक दे हैव स्टार्टेड इट विद द बेसिक्स ऑफ फिजिक्स ना, कि मतलब मैग्नेटिज्म क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, इसके अलावा आपका एटम क्या होता है एंड वो सब चीज़ें, तो उसके बारे में लाइक हम पढ़ लेंगे एंड दैट इज़ लाइक द बेसिक जो हमें पता ही है, तो इसको एक बार उसको हम गो थ्रू कर लेंगे एंड देन विल जंप ओवर टू उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड ये सब। और आप देखोगे कोई एग्जाम्स में अगर हम बात करते हैं ना इन चीज़ों के ऊपर वो काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो गया, वेव लेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, वो सब, बिकॉज ये बेसिक टर्म्स जो है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेव लेंथ क्या होता है, उसी को यूज़ करके वही फ्रीक्वेंसी फिर टर्म हम यूज़ करते हैं मोडालिटीज़ में वो सब। लेकिन इवेंचुअली जब हमें हमें यही नहीं पता कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होता है एंड उसके बाद फ्रीक्वेंसी हम किस तरह से क्या मेजर करते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी होती क्या है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो हाउ कैन वी टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटी। आप देखोगे कई स्पेसिफिकली जो जो आप क्वैक्स की बात करते हैं ना, जो कि मतलब सिर्फ मशीन अप्लाई कर रहे हैं वो सब, उन्हें हम देखोगे वो बोलेंगे हाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो इसकी या फिर ये बढ़ा दो। फ्रीक्वेंसी उनसे पूछोगे होता क्या है फ्रीक्वेंसी, वो नहीं पता फ्रीक्वेंसी, लेकिन हाँ मशीन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। जैसे जैसे इवन हम लोग अगर अगर मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ तो मोबाइल फ़ोन में मोबाइल फ़ोन की वॉल्यूम बढ़ा दो, लेकिन उसके पीछे मैकेनिज्म क्या काम कर रहा है वो तो उसी को पता है ना जिसने मोबाइल फ़ोन बनाया है या फिर जिसने पढ़ा है उसके बारे में। तो लेकिन हम लोग सिर्फ मोबाइल फ़ोन की वॉल्यूम में ब्राइटनेस सिर्फ बढ़ा देते हैं, तो वही चीज़ हो रही है। लेकिन अगर हमें पता नहीं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होता है एग्जैक्टली वो सब, अगर हमें उसके अपने कोर तक नहीं पता, तो इन दैट केस सिर्फ हम सिर्फ मशीन को ऑपरेट ही कर सकते हैं, हमें उसका बेसिक्स नहीं पता, तो इन दैट केस इट डजंट मैटर कि हम फिर कितना वो कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ द बेसिक्स ऑफ दिस थिंग, देन वी विल जंप ओवर टू अदर थिंग्स। तो पहले हम ये मतलब बेसिक चीज़ें बात कर लेंगे इसकी, उसके बाद में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज़ की, इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़ मेनली, उसके बाद हीट मोडालिटीज़ की एंड उसके अलावा हम फिर हमारा एनसीवी हो गया, एसडी कर्व हो गया। अच्छा कोई बता सकता है एनसीवी क्या होता है? एनसीवी टेस्ट क्या होता है बेसिकली? Conduction हाँ velocity. हाँ, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्टिंग है ना, एंड दूसरा हमारा एसडी कर्व टेस्ट। दोनों में एक बेसिक स्ट्राइकिंग डिफरेंस है, दोनों का एक मतलब वो है ड्रॉबैक है। ये मैं होमवर्क दे दूँ अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है, सोचोगे इसके बारे में या अभी बताऊँ? सोचेंगे पहले. ठीक है, पहले पहले सोचना, इसको हम कल डिस्कस करते हैं कि दोनों में मतलब दोनों का एक 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 ड्रॉबैक है, मतलब कि एनसीवी का भी ड्रॉबैक है, हाँ एंड एसडी कर्व का भी ड्रॉबैक है। ठीक है, वो अब एक बार फिगर आउट करना क्या है एंड इसको हम कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग। ठीक है, ये टर्म्स हमने ये सब हमने हमने पढ़े हुए हैं अपने, मतलब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं सब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटम, तो कैन एनीवन टेल मी एटम एटम होता क्या होगा विदाउट टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन, मतलब बेसिकली एटम होता क्या होगा? द स्मॉलेस्ट यूनिट ना? Yes sir. द स्मॉलेस्ट, क्या कोई बताएगा? निशा बताओगे? द स्मॉलेस्ट, Smallest unit contained in the matter. हाँ, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैटर और समथिंग ना, द स्मॉलेस्ट कॉम्पोनेंट, स्मॉलेस्ट मैटर, और यू कैन से स्मॉलेस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर की जो हम बात कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एटम। एटम ऑफ कोर्स फर्दर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स वगैरह हमें देखने को मिलता है, उसके अलावा और भी चीज़ें होती है, लेकिन वो उससे भी स्मॉल है। लेकिन स्मॉलेस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, that is called as an atom. And of course atom has got in the center, it is got a nucleus, and then we have got this electrons जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं इसके चारों तरफ, ये सब हमें पता है ना। एंड देन वी हैव गॉट द न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूट्रल है, देन वी हैव गॉट द प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है इन द न्यूक्लियस, एंड देन वी हैव गॉट दिस इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमारा नेगेटिवली चार्ज है। देन उसके बाद भी हम टर्म यूज़ करते हैं एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर बेसिकली मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज द इलेक्ट्रिक नंबर। जैसे कोई मेरे को बताएगा कि कार्बन का क्या होता होगा एटॉमिक नंबर? 6. 6 है ना, याद है ये सबको? किस किस को याद है पीरियोडिक टेबल, या कहाँ तक याद है? हमने मैंने याद करी थी 30 तक अपने 11th 12th में। याद है किसी को?
हाइड्रोजन हीलियम नियॉन, नहीं हाइड्रोजन हीलियम क्या कहते हैं, लिथियम लिथियम, ऐसा कुछ भूल गई सर। हाँ एग्जैक्टली है ना। तो इस तरह से हम मतलब बात कर सकते हैं इसकी। एंड तो इसके अकॉर्डिंग मतलब इसका जो जो नंबरिंग होती है उसके अकॉर्डिंग हम इसका एटॉमिक नंबर बोल देते हैं, या फिर मेनली इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं होता होगा, देखो नॉर्मली जैसे हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर अगर स्टेबल एटम है, स्टेबल एटम में हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स का नंबर सेम रहता है ना, तभी वो स्टेबल है, बिकॉज जितने नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास स्ट्रक्चर्स है उतने ही नेगेटिवली चार्ज स्ट्रक्चर्स है, तो इवेंचुअली वो स्टेबल है ना। तो लेकिन लेकिन अगर हमें एक स्ट्रक्चर, एक एटम का हमें एटॉमिक नंबर अगर हमें याद रखना है, तो इन दैट केस हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करनी है, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो वेरी कर सकता है ना, कभी लूज करेगा कभी गेन करेगा। तो इन दैट केस अगर अगर लूज करेगा तो उस केस में एटम क्या हो जाना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज कि नेगेटिवली चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज है ना, बिकॉज अब इसके पास नेगेटिव कम है, नेगेटिव कम है, तो या फिर हम कह सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज है। हाँ, लाइकवाइज हम नर्व में भी अगर बात करते हैं, मतलब एक नर्व में अगर अगर कंडक्शन होता है एक इम्पल्स का, तो इन डैट केस मैं आपको अगर इमेज से दिखाऊँ, पोलैरिटी इन नर्व, आई होप अगर वो इमेज आए, हाँ ये वाला ना, देखो देखो ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, मतलब अगर हम, ओके ये वीडियो है, या हियर वी कैन सी, देखो जैसे इस तरह से, मतलब जैसे ये जो ये देखो ये जो ब्लू में दिखाया जा रहा है ना, ये हमारा नर्व इम्पल्स है जो कि ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, थ्रू आउट द नर्व। तो वी कैन सी मेनली हो क्या रहा है कि आउटसाइड द नर्व एंड इनसाइड द नर्व की हम बात करते हैं, मतलब कि हमारा नर्व जो है, नर्व के आउटसाइड एंड इनसाइड, तो वी कैन सी नर्व के आउटसाइड व्हेन इट बिकम्स नेगेटिव, है ना, आउटसाइड व्हेन इट बिकम्स नेगेटिव एंड इनसाइड व्हेन इट बिकम्स पॉजिटिव। इन दैट केस वी कैन से कि उस पर्टिकुलर रीजन पे हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है उस नर्व में, है ना। एंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ मतलब कि एक नर्व इम्पल्स है जो कि ट्रैवल करेगा, तो इट मीन्स कि इट हैज़ टू बी नेगेटिव आउटसाइड एंड पॉजिटिव आउटसाइड। लेकिन यहाँ पे कोई पॉजिटिव आयन नहीं है हमारे पास। मेनली कौन कौन से आयन्स होते हैं यहाँ पे, सोडियम आयन होता है एंड पोटेशियम आयन होता है ना, हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट होता है। सबको इसके बारे में आइडिया है, सोडियम पोटेशियम है ना, सोडियम पोटेशियम पंप, 3 सोडियम 2 पोटेशियम पंप इसको बोलते हैं ना, 3 सोडियम 2 पोटेशियम पंप, मतलब जहाँ पे 3 सोडियम एक बार ट्रैवल करते हैं नर्व के एक साइड से दूसरे साइड की तरफ, एंड उसके बाद में जो पोटेशियम है वो दूसरे साइड से इस साइड की तरफ। तो इट मीन्स कि यहाँ पे वी कैन सी कि हमारा जो रिवर्सल इन पोलैरिटी होता है, मतलब कि दोनों हमारा हम देख, मतलब जहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है या फिर कहाँ जहाँ पे कम पॉजिटिव होता है, तो वी कैन सी कंपैरेटिवली दूसरे साइड पे नेगेटिव ज़्यादा है उससे कंपैरिजन में। एंड देन लाइकवाइज वी कैन से कि हमारा उस पर्टिकुलर रीजन पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, वहाँ पे नेगेटिवली चार्ज जो है वो ज़्यादा है, या फिर कम पॉजिटिव चार्जेस, कम पॉजिटिव आयंस एज कम्पेयर टू द इनर सेक्शन ऑफ द नर्व। एंड लाइकवाइज वी कैन से कि उस पर्टिकुलर रीजन पे हमारा नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ। लाइकवाइज वी कैन से दिस थिंग एज वेल कि यहाँ पे भी मतलब हमारा जो नेगेटिव चार्ज जो है वो मतलब इट कैन वेरी, बट अगर अगर हमारा मतलब इफ इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इन दैट केस वी कैन से इट इज स्टेबल। ओके, तो लेकिन नंबर ऑफ, अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो इन दैट केस वी टू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नॉट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड हाँ मैं इसी से बात कर रहा था कि अगर अगर एक अगर एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो इन दैट केस इट बिकम्स लेस नेगेटिवली चार्ज, और वी कैन से इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एज कम्पेयर टू अनदर एटम जो कि ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज है, जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इट इज़ मोर दैन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट वॉज सपोज टू हैव, अगर वो नॉर्मल न्यूट्रल अगर वो स्टेबल फॉर्म में होता। ठीक है, एंड लाइकवाइज वी कैन से हमारा जो न्यूट्रॉन का साइज है, इट इज़ द मैक्सिमम देन द साइज ऑफ द प्रोटॉन एंड देन द साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन्स आर द स्मॉलेस्ट इन एन एटम। ठीक है, ओके, दिस मच वी नो, ये हमने इसकी बात कर ली स्टेबल फॉर्म में एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, और यू कैन से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सपोज टू बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ स्टेबल फॉर्म, ये हमें पता है। Just remember this particular thing, that is an electron is 1 by 1/837 of a proton's mass, ठीक है, because again they might ask you this thing कि electron is the smallest entity ना in an atom, तो we can say कि electron is 1 by 1/837 times the size of a proton, ठीक है। and then further अगर आपने ये सब शेल्स के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, एक तो हमारे शेल्स होते हैं ना, मतलब सेंटर में हमारा न्यूक्लियस है, then we have got these shells
जो कि उसके बाद प्रेजेंट होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव रिवॉल्व करते हैं। लेकिन वी कैन टॉक अबाउट दिस थिंग कि एक शेल में भी हमारे पास सब शेल्स प्रेजेंट होते हैं ना, एस पी डी एंड एफ, है ना। उसके बाद हम इसके अकॉर्डिंग इसकी नंबरिंग करते थे। आपको सबको याद है 11th क्लास में हम मेनली ये पढ़ते थे, इलेक्ट्रॉन्स की नंबरिंग, है ना, एस पी वन, 1s1, 1s2, 2s, ऐसे करके ना, 2p समथिंग ऐसे कुछ करके करते थे। तो इस तरह से वी यूज टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक शेल के सब शेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वी कैन टॉक अबाउट दिस थिंग। एंड इसके साथ में हम ये भी बात करते थे कि मतलब इट इज़ आई थिंक कैसा होता था, मतलब डम्बल शेप एंड डम्बल शेप एंड देन फ्लावर शेप और समथिंग, ऐसे ऐसे कुछ इसका सब शेल्स के बारे में बात करते थे। तो खैर इतना इतना हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, बट वी कैन सी कि हमारे पास सब शेल्स प्रेजेंट होती है ईच शेल में, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ये हम एक शेल की बात करें, एक शेल के अंदर सब शेल्स की हम बात करते हैं। ओके, ठीक है, ये हमने देख लिया। एंड आई थिंक सबको इसके बारे में आइडिया होगा, ये सबने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मली मतलब अगर हम देखते हैं कि दो एटम्स के बीच में दो अलग अलग टाइप के बॉन्ड बन सकते हैं ना। कोई बता सकते कौन कौन टाइप के बॉन्ड होते हैं? इक्विवेलेंट और कोवेलेंट। हाँ, एक नहीं, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है हमारा, कार्बन बॉन्ड। हाँ, कार्बन बॉन्ड ना, या फिर इसको कौन सा बॉन्ड कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, हाँ, कौन सा बॉन्ड होता है? एक तो कार्बन कार्बन के बीच में जो बनता है, जहाँ पे शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, हाँ, कोवेलेंट, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, हाँ, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, हाँ, इलेक्ट्रोवेलेंट एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। हाँ, ये दो बॉन्ड्स बनते हैं। एंड कोवेलेंट कार्बन बनता है ना, एंड इलेक्ट्रोवेलेंट जो होता है वो बाकी आइटम्स के बीच में, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, आयोनिक बॉन्ड जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव फिर ज्वाइन करते तो आयोनिक बॉन्ड। हाँ, मतलब जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे मान लो ये पर्टिकुलर एटम है, इसके पास में आउटर मोस्ट शेल में, तो आउटर मोस्ट शेल जो है वो डिसाइड करता है कि एक पर्टिकुलर एटम कैसा रिएक्ट करेगा, वेदर इट इज़ रिएक्टिव और नॉट। तभी हम कहते हैं कि कुछ चीज़ें होती है जो कि हम बोलते हैं कि ये कंडक्टर्स है, कंडक्टर्स ऑफ हीट है, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज उसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मतलब लेट्स से हम अगर बोलते हैं कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना। एंड अगर हम कह रहे हैं कि एक शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, तो इन डैट केस 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट है, तो इन डैट केस इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स और एक्वायर करना इज़ मच ईजियर देन लूजिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स ना। तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करेगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करेगा एंड ये लूज़ नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन। एंड इन डैट केस अगर ये इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करेगा, लूज़ नहीं करेगा, तो इन डैट केस ये हमारा कंडक्टर होना चाहिए कि इंसुलेटर होना चाहिए? इंसुलेटर होगा ना, बिकॉज वो चीज़ है, जैसे हम इस वाले की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वी कैन से कि आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए ईजी है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे रादर देन गेनिंग 7 मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए ये अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो इन डैट केस वी कैन से कि ये स्ट्रक्चर जो है, ये एटम जो है, ये हमारा कंडक्टर होगा, बिकॉज ये हीट या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, बिकॉज इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एंड बिकॉज ऑफ डैट हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के थ्रू हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कंडक्शन देखने को मिलेगा। तो जिस एटम में हमारा वैलेंस शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अगर वो लूज़ करता है, तो इन दैट केस वी कैन से कि वो हमारा कंडक्टर है। इसके अलावा अगर वो गेन करता है, वी कैन से दैट इज़ एन इंसुलेटर, है ना। ओके, एंड लाइकवाइज, हाँ, यहाँ पे ये दो टर्म आ गए ना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड द कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। कोवैलेंट बॉन्ड ये हमारा, तो कोवैलेंट बॉन्ड में हम पहले इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की हम बात करते हैं, तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, तो वी कैन से सोडियम एंड क्लोरीन, मतलब दैट मेक्स द NaCl, that is salt. So we can say कि sodium has got 1 electron in the outermost shell, and then chlorine is deficit of 1 electron in the outermost shell. So eventually it loses its 1 electron towards the chlorine, and eventually it makes both of them get stable. Na? So eventually they both get stable, and we can say that it becomes, the sodium becomes the positive ion, and the chlorine, it gains the negative ion, na? So it becomes negative. So we can say likewise they both become stable, and that is the common salt, that is NaCl. That is the electrovalent bond. इसके अलावा कोवैलेंट बॉन्ड वहाँ होता है जहाँ पे we can say कि outermost shell में there are 4 electrons ना, तो it will neither gain nor it will lose. So in that case it will just share ना, it share करेगा electrons अपने बाकी
उसके साथ में, एंड इवेंचुअली वी कैन से कि शेयर, जैसे कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ में हम देख रहे हैं, तो चारों हाइड्रोजन के पास में दे हैव गॉट 1 इलेक्ट्रॉन, एंड देन कार्बन हैज़ गॉट 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो ऑफ कोर्स दे आर शेयरिंग these electrons, and that eventually all these structures they become stable, and that is called as a covalent bond, जहाँ पे शेयरिंग देखने को मिलती है. तो मोस्टली विल सी दिस थिंग इन कार्बन, है ना. ठीक है. तो आई होप वी टिल नाउ वी आर क्लियर द इलेक्ट्रोवैलेंट एंड द कोवैलेंट बॉन्ड्स, एंड आई एम होपिंग कि ये सब हमने पढ़ा हुआ है पहले. अगर मैं रिपीट ही कर रहा हूँ, मतलब आप सबने पढ़ा होगा, ये सब पढ़ा है कि नहीं? सब पढ़ा है. पढ़ा है ना. ठीक है. तो एक बार रिवाइज करें, सो दैट कहीं पे मे भी अगर पूछ लेते हैं वो. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली पहले फॉर्म कैसे होता है, देन उसके बाद वी विल टॉक अबाउट दिस कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो होती क्या है. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो फॉर्म कैसे होता है. अगर हम एक एटम की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी भी एटम को अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो इन दैट केस उसमें जो स्ट्रक्चर्स है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है मेनली, वो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी ना. अगर हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इन दैट केस उसका मतलब इट विल इंक्रीज, उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. एंड बिकॉज ऑफ दैट, लेट्स से अगर हमारा एक इलेक्ट्रॉन इनर मोस्ट शेल में प्रेजेंट था, तो बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी जो कि हम इसको प्रोवाइड करिए इन द फॉर्म ऑफ हीट और समथिंग एल्स, तो उसमें वो इलेक्ट्रॉन जो है इट जम्प्स ओवर टू इट्स नेक्स्ट शेल, है ना. अपने नेक्स्ट शेल में वो जंप कर देगा इलेक्ट्रॉन. एंड आफ्टर सम टाइम जब हम हीट को हटा देते हैं, आफ्टर सम टाइम वी विल सी कि नाउ द एनर्जी इज नो मोर लेफ्ट विद द इलेक्ट्रॉन, एंड नाउ इट विल लाइक ड्रॉप बैक टू इट्स इनर मोस्ट शेल, अपने वापस अंदर वाले शेल में आ जाएगा, बाय रिलीजिंग अ फोटोन. मतलब कि वो जो फोटोन क्या है, फोटोन इज बेसिकली अ पैकेट ऑफ एनर्जी, मतलब एक एनवेलप ऑफ एनर्जी जो उस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया था जब उस इलेक्ट्रॉन को हमने हीट प्रोवाइड किया था. तो हीट के फॉर्म में जो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, अब जब वहाँ पे एनर्जी इज़ नो मोर, तो इन दैट केस इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस जंप कर देगा अपने लोअर स्टेट पे, एंड इन दैट केस इट विल रिलीज एन एनर्जी, अ पैकेट ऑफ एनर्जी जो कि उसने एब्जॉर्ब किया था, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज फोटोन. एंड वो फोटोन ही होता है जिसको हम लाइट कहते हैं, जो हमें एक बल्ब से लाइट निकलती हुई दिख रही होती है, या फिर कोई भी स्ट्रक्चर, जैसे लेट्स से अगर हम बोलते हैं कि अगर हम सोडियम को अगर हम हीट कर रहे हैं, तो इन दैट केस इट शोज दिस कैरेक्टरिस्टिक येलो कलर. या फिर अगर हम आयरन को अगर हम हीट करते हैं, तो इन दैट केस इट शोज अ रेड कलर और मे बी सम ऑरेंजिश कलर ना. तो वो कलर क्यों देखने को मिलता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ फोटॉन्स बाय द इलेक्ट्रॉन, जो कि उसने एक टाइम पे एब्जॉर्ब किया था बाय द हीट. वो हीट उसने एब्जॉर्ब किया, एंड देन उसने लाइट के फॉर्म में उसको रिलीज़ किया, और वी कैन से फोटोन के फॉर्म में रिलीज़ किया. एंड उसके साथ में वी कैन सी कि जब वो फोटोन के फॉर्म में रिलीज़ करता है, तो इन दैट केस वी कैन से कि रेडिएशंस which are produced by movement of electrons within the atom. So these photons, and along with that the radiations, this thing that is being produced by a structure that is called as electromagnetic radiation. And इसमें mainly अगर हम heat provide कर रहे हैं, तो heat की वजह से we can say कि हमारा, can anyone tell me कि heat की वजह से सबसे commonly हम कौन सा radiation की बात कर सकते हैं, मतलब पूरे electromagnetic spectrum में. it is the हाँ नहीं, it is the IR ना, infrared. It is the IR waves, IR radiation that we can talk about. Even IR जो है वो हमारी बॉडी भी रिलीज कर, कोई भी हॉट स्ट्रक्चर, कोई भी वार्म या हॉट स्ट्रक्चर जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन हमेशा रिलीज़ कर रहा है, चाहे वो हमारी बॉडी है, चाहे वो मे बी कोई टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, कुछ भी है, जो भी हॉट स्ट्रक्चर है वो हमेशा हीट रिलीज़ करेगा. इसके अलावा हम ये कैन से कि हमारा वो इंफ्रारेड रेडिएशन IR जो है वो भी रिलीज़ करेगा. ठीक है. तो दैट वी कैन से कि इसके अलावा, जैसे मतलब यहाँ पे इसने एक फोटोन ऑफ लाइट, ये हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम में आ गया. इसके अलावा हमने IR की बात कर ली, IR रिलीज़ किया. इसके अलावा मे भी कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हो जो कि UV रिलीज़ करे, है ना, जैसे हम UV लैम्प में बात करते हैं, या फिर कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हो जो कि कोई और फॉर्म ऑफ मतलब कोई रेडियो वेव रिलीज़ कर सकता है. तो वी कैन से कि मतलब इसकी मतलब इस तरह से जो भी स्ट्रक्चर्स रिलीज़ करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. कोई भी स्ट्रक्चर कोई भी फॉर्म में अगर वेव्स को रिलीज़ करता है, तो वी कैन कॉल इट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो ओके, तो नॉर्मली हमारी वेव्स जो है वो किस तरह से मतलब ट्रैवल करती होगी, साइनोसाइडल फॉर्म में ना, इस तरह से, है ना. आपने कोई भी, अगर आप वेव ट्रांसमिशन की अगर हम बात करेंगे, तो वी कैन सी कि जो वेव्स है वो हमारी साइनोसाइडल, यहाँ पे कहीं तो नहीं है, लेकिन
आई होप सबने वो देखा होगा, तभी तभी हम बात करते हैं क्रेस्ट एंड ट्रफ एंड उसके अलावा एम्पलीट्यूड एंड उसके अलावा वेव लेंथ, दो क्रेस्ट के बीच में या दो एम्पलीट्यूड्स के बीच में, एंड उसके अलावा फ्रीक्वेंसी, मतलब एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो इसकी हम बात कर सकते हैं। आपने एक चैप्टर अगर आपको याद हो 11th में होता था, ड्यूअल नेचर ऑफ वेव्स और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, याद है आपको? फिजिक्स पार्ट 2 जो था उसमें एक था, उसमें ड्यूअल नेचर की बात की थी। तो उसमें बोला था कि हर ऑब्जेक्ट जो होता है, हर ऑब्जेक्ट में एक तो उसका वेव नेचर भी होता है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा उसमें पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है, खैर उसमें हम अभी जाएंगे नहीं, लेकिन वी कैन सी कि उसमें वेव नेचर भी होता है हर चीज़ का, एंड उसके अलावा पार्टिकल नेचर भी होता है। मतलब वो मतलब एट द सेम टाइम, मतलब अगेन ये बहुत हैफेजड है, लेकिन एट द सेम टाइम एक एटम की अगर हम बात कर रहे हैं, वो वेव फॉर्म में भी ट्रैवल कर रहा है, एंड उसके अलावा वो मतलब इसमें क्या कहते हैं, जिस तरह से साउंड ट्रैवल करता है, मतलब हमारा क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड देन रिलैक्सेशन, मतलब कि एक जगह पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं देन रिलैक्स कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है रिलैक्स कर रहा है, मतलब उसको क्या कहते हैं, एक टर्म कहते हैं उसको बेसिकली। लेकिन वी कैन से कि मतलब उस तरह से भी पार्टिकल नेचर भी शो करता है, उसके अलावा वेव नेचर भी शो करता है एक पर्टिकुलर मैटर या सब्सटेंस। ठीक है, उसको हम ड्यूअल नेचर कहते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ वेव फॉर्म की बात करेंगे। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो हीट प्रोवाइड करने की वजह से अगेन जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइट हुए, उसके बाद में उसने रिलीज़ किया फोटोन, तो तभी हम देखते हैं कि टंगस्टन एक बल्ब होता है, बल्ब के अंदर हमारा टंगस्टन प्रेजेंट होता है, एंड बल्ब के अंदर हमारा एक गैस होती है। तो बताएगा कौन सी गैस होती होगी? जो मैं पुराने बल्ब की बात कर रहा हूँ, जो पहले वाला जो बल्ब आता था। हीलियम। हाँ, कोई भी इनर्ट गैस ना, आर्गॉन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन तो नहीं कह रहा, लेकिन हाँ मतलब आर्गॉन या नियॉन में लिए ना, तो ये मतलब हमारी इनर्ट गैसेस होती है ना, जो कि इनर्ट गैस, मतलब कि ये रिएक्ट नहीं होने देगी। इसके अलावा जो भी हमारी गैस, मतलब ऑक्सीजन हो गया या बाकी जितने भी गैसेस है, नाइट्रोजन हो गया, ये सब हमारी इनर्ट नहीं होते ना, मतलब तभी तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम देखते हैं, हम फायर को जला सकते हैं ना, हम मतलब कोई भी चीज़ लेट करते हैं तो वहाँ पे फायर, बिकॉज हमारी जो ऑक्सीजन है वो रिएक्टिव गैस है। ऐसी बाकी भी हमारी रिएक्टिव गैसेस होती है, लेकिन ये सब हमारी नॉन रिएक्टिव गैस है। एंड इसको हम बल्ब के अंदर क्यों डालते होंगे? बिकॉज मेनली जो टंगस्टन है, मतलब टंगस्टन हमारा जो फिलामेंट, आपने देखा हो, सबने देखा है वो बल्ब पुराना वाला देखा है? मैंने इसकी बल्ब वाले की बात करी है, बल्ब वाली चीज़ की बात करी है कि नहीं करी पहले, कि बारिश में बल्ब क्यों फट जाता है कई बार, मतलब पहले के टाइम पे देखने को मिलता था। अभी CFLs वगैरह तो होते हैं, उसमें तो अलग सिस्टम होता है, लेकिन बल्ब अगर आपने देखा हो, बल्ब अगर कहीं बाहर लगा हुआ है, मैं वो पुराने वाले बल्ब की बात कर रहा हूँ, एंड अगर वो कहीं बाहर लगा हुआ है एंड बारिश हो रही है कंटिन्यूसली, मौसम जो ठंडा है, तो इन डायट के साथ देखोगे कुछ टाइम के बाद वो फट जाता है एकदम से बल्ब। इसकी मैंने बात करी है क्लास में कि नहीं करी है? नहीं करी ना? अगेन इसका रीज़न कोई बता सकता है? अगर ये चीज़ें हमारी जनरेशन में बहुत कम हम लोगों को पता होगी, ये इन चीज़ों की बात अगर हम अपने पेरेंट्स वाली जनरेशन या ग्रैंड पेरेंट्स वाली जनरेशन से बात करेंगे ना, वो पक्का बता देंगे कि इसका रीज़न एग्जैक्टली क्या होता है। लेकिन मतलब बेसिकली होता क्या है कि जैसे आप कहीं पे भी अगर देखोगे कि जैसे अगर कंटिन्यूसली एक बल्ब है, मतलब वो प्रॉपर जो 100 वाट वाला जो बल्ब होता है, अगर वो कहीं बाहर जल रहा है कंटिन्यूसली एंड वहाँ पे अगर बारिश हो जाती है, तो इन डैट केस बल्ब फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर जो टंगस्टन प्रेजेंट है, टंगस्टन जो है वो हमारा मतलब इट इज़ लाइक रियली रेड एंड हॉट ना, बिकॉज उसमें हम उसको हम हीट देना चाह रहे ताकि वो फोटोन रिलीज़ करे, मतलब वो लाइट रिलीज़ करे ना। एंड उसके अलावा अब वो इतना ज़्यादा हीटअप हो गया कि हम मतलब वी डोंट वांट कि वो, अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर वो आता है, तो इन डैट केस ऑफकोर्स वो मतलब फायर पकड़ लेगा ना। अगर वो इतना हॉट स्ट्रक्चर अगर जो है वो अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है, तो ऑफकोर्स वहाँ पे फायर आग लग जाएगी वहाँ पे। तभी हम उसके चारों तरफ हम एक इनर्ट गैस जो कि एक्ट नहीं करती, इनर्ट गैस का हम वहाँ पे रखते हैं, ताकि वहाँ पे वो जो चाहे वो कितना भी फिलामेंट गर्म हो जाए, वहाँ पे वो आग ना पकड़े ना। दैट इज़ द बेसिक रीज़न कि वहाँ पे हम इनर्ट गैस क्यों रखते हैं उसमें। लेकिन बारिश के केस में क्या होता होगा? बारिश में लाइक वी कैन सी कि हमारे जो बल्ब है, किसी ने अगर बल्ब चेंज किया हो, तो आपने देखा होगा कि बल्ब काफ़ी गर्म हो जाता है। CFLs वगैरह इतने गर्म नहीं होते, लेकिन वो बल्ब काफ़ी गर्म हो जाता था। तो इतना गर्म बल्ब जो है उसमें कंटिन्यूसली अगर पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, तो इन डैट केस जो ग्लास है उसका
कंटिन्यूस कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा ना. कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन टर्म हम मसल में यूज़ करते हैं. क्या मतलब एक टर्म हम यूज़ करते हैं ना, मतलब कंप्रेशन एंड दैट है ना, मतलब आपको देखने को मिलेगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट जो ग्लास होगा वो ब्रेक कर जाएगा ना, बिकॉज ऑफ दैट. एंड अगर एक बार ग्लास में ब्रेक किया, मतलब स्लाइड अगर क्रैक भी आ गया एंड थोड़ा सा भी अगर ऑक्सीजन उसमें एंटर कर गया, तो ऑफकोर्स एकदम से इतने इतने हॉट स्ट्रक्चर के साथ में ऑक्सीजन कांटेक्ट में आए तो वहाँ पे वो बर्स्ट, वहाँ पे मतलब वो फट जाएगा ना वो बल्ब, है ना. तो दैट इज़ द रीज़न कि हमें हमें बारिश में क्यों बल्ब मतलब फटना, मतलब बहुत ज़्यादा फटता है बल्ब. सबको समझ आया कि नहीं? खैर ये मैंने उसकी बात कर ली, मतलब बहुत वो वाली बात है, लेकिन सबको समझ आया ये चीज़ की नहीं? ठीक है. यस सर. ओके. ठीक है. ओके. ये चीज़ आप ट्राई करना अपने अपने घर पे, आप पूछना, मतलब उनको जो पेरेंट्स हमारी जनरेशन जो उनको पक्का पता होगा इसके बारे में, बिकॉज दे हैव बीन यूजिंग एंड चेंजिंग दिस बल्ब. लेकिन हम लोग तो अब CFL वाली जनरेशन है तो हम लोग तो इतना नहीं करते. खैर तो वैकेंसी की सारे हॉट स्ट्रक्चर जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो एमिट कर रहे हैं. एंड हाँ ठीक है, टंगस्टन एंड ये बेसिकली हमने देख लिया कि मतलब ये रीज़न है हमारा कि वाई इट इज. एंड ठीक है, मतलब क्यों क्यों हमारा बल्ब जो है वो लाइट एमिट करता है, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है. या फिर वी कैन से कोई हॉट स्ट्रक्चर है वो हमारा इंफ्रारेड रेडिएशन मतलब रिलीज़ कर रहा है. इवेंचुअली सारे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज़ कर रहे हैं. मतलब कोई हमने हीट या कोई भी हमने एनर्जी दिया, उसके रिस्पॉन्स में कोई और एनर्जी या कुछ किसी और फॉर्म में वो बाहर आ रहा है, मतलब IR के फॉर्म में, UV के फॉर्म में, विजिबल लाइट के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में. तो दैट देन वी कैन से कि इस तरह से वी कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है. एंड मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करी थी ना, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारे स्पेक्ट्रम में दोनों साइड में, एक साइड में हमारा गामा वेव था और दूसरे साइड में हमारा क्या था, रेडियो वेव्स ना. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हाँ. तो इसमें देखो इस तरह से इसकी मैं बात कर रहा हूँ. यू कैन सी दिस कि ये हमारी गामा वेव्स है, गामा रेज है. एंड यू कैन सी दिस, ये हमारी रेडियो वेव्स है. फ्रीक्वेंसी आपको ज़्यादा कहाँ देखने को मिल रही है, गामा में कि रेडियो में? हाँ, फ्रीक्वेंसी मीन्स कि एक सेकंड के अंदर वो कितनी बार रिपीटेशन है. रेडियो हाँ हाँ, रेडियो वेव्स ना, रेडियो वेव्स में नहीं सॉरी, गामा वेव्स में एक सेकंड में, मतलब देखो एक सेकंड के अंदर नंबर ऑफ रेपिटेशन ज़्यादा किसमें है, गामा वेव्स में ना, गामा रेज में, है ना. तो गामा में है ना, विल सी कि इन गामा वेव्स देयर विल बी मोर अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी. लेकिन वेव लेंथ की अगर हम बात करेंगे, वेव लेंथ मीन्स ये दो वेव्स है हमारे, इसका एम्पलीट्यूड हमारा ये होगा ना, ये हमारा इसका एम्पलीट्यूड होगा, द हाईएस्ट पीक जो कि एक वेव अटेंड करता है, एंड इसका एम्पलीट्यूड ये होगा. दोनों एम्पलीट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द वेव लेंथ. वेव लेंथ ज़्यादा कहाँ है, रेडियो वेव्स में ना. ठीक है. ठीक है. तो इट मीन्स कि नाउ वी कैन सी कि क्यों गामा वेव्स जो है यूज इन मेडिसिन एंड इन किलिंग कैंसर सेल्स. और बेसिकली वी कैन सी किलिंग कैंसर सेल्स, और मे बी वी कैन से कि गामा वेव्स जो है इट कैन बी लाइक फैटल फॉर द पर्सन. मतलब ये रेडियो एक्टिव वेव्स होती है. वाई? बिकॉज वी कैन से कि इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम है कि इवन दे कैन एंटर द सेल्स, द DNA, एंड दे कैन ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द DNA, द कोडॉन्स एंड ऑल दैट. जो कोडिंग है ना उसको इट कैन अफेक्ट. तो दैट्स वाई वी कैन से कि गामा वेव्स आर द मोस्ट यू कैन से वर्स्ट जो पर्सन को अफेक्ट कर सकती है. एक्सरेज भी तभी हम कहते हैं कि एक्सरेज भी बहुत ही लिमिटेड फॉर्म में, बहुत ही कंट्रोल्ड फॉर्म में देना चाहिए जब एक्सरे हम मतलब डायग्नोस्टिक एक्सरे की जब हम यूज़ करते हैं ना. ठीक है. एंड लाइक वाइज इंफ्रारेड एंड देन दिस थिंग रेडियो. एंड दैट्स वाई कि रेडियो वेव्स हमारी बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, वरना हम कंटिन्यूसली हम ऑल द टाइम वी आर सराउंडेड बाय रेडियो वेव्स. लेकिन इट इज़ नॉट हार्मफुल एट ऑल बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है. ठीक है. खैर यहाँ पे हम इसको रोक देते, से आगे हम फिर कल ही बात करेंगे अबाउट दिस थिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड ये सब. ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं. एंड आई वुड लाइक टू नो कि लाइक इज़ इट इंटरेस्टिंग और नॉट, या कैसा चल रहा है अभी स्टार्टिंग का? बोरिंग लग रहा है कि कैसा लग रहा है आपको, कि पढ़ा हुआ है इससे आगे बढ़ जाओ स्पीड में, या फिर इसको आपको समझना है प्रॉपरली, या किस तरह से? समझना है, भूल गई पहले. ओके. अब यू वांट कि मैं इसको एक एक करके मतलब करूँ, बिकॉज एक बैच में ऐसा भी हुआ था कि मतलब दे टोल्ड मी कि ये सब हमने पढ़ा है, तो वहाँ पे मैंने मतलब इसको ऊपर से मतलब कवर कर लिया था, बिकॉज बेसिक जो है वो हमें पता है. लेकिन स्टिल लेटेंट हीट हमें पता होना चाहिए.
ठीक है चलो इसकी मैं कल ही बात करूँगा, लेकिन लेटेंट हीट हमारा वैक्स मतलब पैराफिन वैक्स बाथ एंड वो सब चीज़ें, तो उससे कोरिलेट करके इफ़ यू वांट तो इसको हम एक एक करके एक चीज़ को हम प्रॉपर्ली डिस्कस कर लेंगे। ये बस स्टार्टिंग का थोड़ा सा ऐसा है कि ये जो आपको मिलेगा मतलब आपको लगेगा आपने पढ़ा हुआ है, इसके बाद में वी कैन जंप ओवर टू हमारे इलेक्ट्रोथेरेपी मोडेलिटीज़ एंड उसके बाद उसकी उसकी फ्रीक्वेंसी एंड उनकी वेव लेंथ एंड उसका उसका मैकेनिज्म क्या होता है वर्क करने का, वो सब फिर हम उसके उस पर आ जाएंगे। उसके बाद में हमें बात करनी है कुछ ये एस डी कर्व एंड ये हमारा जो भी मतलब ये है एन सी बी एंड इसकी वेव एंड वो सब उसके बारे में बात करनी है। आई थिंक दैट इज़ सफिशिएंट जो हमारा इलेक्ट्रो में रहेगा। ठीक है तो ठीक है इसको हम अभी रोक देते हैं। एंड मैंने आप सबसे एक क्वेश्चन पूछा था, किसी को याद है क्या पूछा था मैंने जो मेरे को कल डिस्कस SD करना है? curve and हाँ NCV एस डी कर्व एंड एन सी वी में डिफरेंस की दोनों का ड्रॉबैक क्या है, ये आप सबको देख कर आना है। ठीक है ओके ठीक है तो लेट्स नाउ वाइंड अप हियर ओनली एंड इसको हम कल से स्टार्ट करते हैं। किसी को ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में आइडिया है? ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, किसी ने टर्म सुना है? ब्राउनियन मूवमेंट एक बार देख के आना। ब्राउनियन मूवमेंट BROWNIAN ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है एंड चलो मैं इस पे कल ही आ जाता हूँ। किसी ने एक साइंटिस्ट का नाम सुना है शॉर्डिंगर, या शॉर्डिंगर्स थ्योरी या शॉर्डिंगर्स इक्वेशन, कुछ सुना है आपने? सुना है कि नहीं? नहीं सर। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मेरे को स्पेलिंग नहीं है। शॉर्डिंगर कैट, हाँ बेसिकली मैं इस चीज़ की बात करना चाह रहा हूँ। मैंने बेसिकली शॉर्डिंगर वाला साइंटिस्ट जिसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, इसके आप वीडियो देखना। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था बेसिकली ही शोड दिस थिंग कि एक बॉक्स के अंदर ही प्लेस द कैट। बेसिकली मतलब ये इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन स्टिल मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। तो इसमें ही प्लेस द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इसके अलावा ही प्लेस मतलब मेनली ही प्लेस द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एंड किया क्या कि मतलब यहाँ पे एज सुन हैज़ ही टर्न्ड ऑन द मतलब स्विच, तो वहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस हैमर तो ये सब्सटेंस जो है ये ब्रेक हुआ रेडियो एक्टिव एंड बिकॉज ऑफ डैट यू कैन से कि अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे या फिर इसको टर्म यूज़ करते हैं क्वांटम लेवल पे, मतलब क्वांटम लेवल मीन्स कि इवन एट अगर हम मॉलिक्यूल्स को भी ब्रेक कर देते हैं तो वहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स है इवन उसको भी अगर हम आगे ब्रेक करते हैं तो आप वहाँ पे आपने टर्म सुना होगा बोसॉन्स, हिग्स बोसॉन एंड वो सब है ना। आपने गॉड पार्टिकल बड़ा कॉमन सुना होगा, बीच में बड़ा फेमस हुआ था गॉड पार्टिकल बड़ा टर्म फेमस हुआ था। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं तो इनका जो अगर प्रेजेंस की अगर हम बात करते हैं तो वी कैन से कि एट द सेम टाइम, जैसे अभी मैंने नेचर की बात करी कि वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, तो ट्रांसमिशन के टाइम पे हम वी कैन से कि एक स्ट्रक्चर जो है वो वेव नेचर भी शो करेगा एंड उसके साथ में पार्टिकल नेचर भी शो करेगा, इवन दो ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। एंड अगेन इट कैन बी हैफेजर टू अंडरस्टैंड अगर हम वर्ल्ड को परसीव करते हैं मैक्रोस्कोपिकली कि मतलब एक चीज़ अगर मान लो बॉल जो रोल कर रही है तो वो सेम टाइप पे स्लाइड नहीं कर सकती, लेकिन ये चीज़ हमारी जब हम बात करते हैं क्वांटम लेवल पे या फिर एटॉमिक लेवल पे उस टाइम पे ये चीज़ें इस तरह से काम नहीं करती। वहाँ पे सेम चीज़ जो है वो सेम टाइम पे दो अलग अलग फॉर्म शो कर सकती है, सेम टाइम पे वो अपना वेव नेचर भी शो कर रही है एंड वो अपना पार्टिकल नेचर भी शो कर रही है। तो बेसिकली ही डिड दिस एक्सपेरिमेंट एंड यहाँ पे ही शोड कि सेम टाइम पे जो कैट है द कैट इज़ डाइंग एज वेल एज द कैट इज़ अलाइव, मतलब इस तरह का कुछ था। तो अगेन बहुत हैफेजर्ड है, लेकिन दिस थिंग इज़ ट्रू व्हेन इट कम्स टू एटॉमिक लेवल एंड क्वांटम लेवल। वहाँ पे एक टाइम पे आपको दो अलग अलग फॉर्म में आपको एक चीज़ मतलब एक ही चीज़ है लेकिन वो अलग अलग फॉर्म अलग अलग फीचर शो करता हुआ आपको मिल जाएगा। तो दैट इज़ द लाइक अ वियर्ड नेचर ऑफ द एटम्स एंड दिस स्मॉल पार्टिकल जिसकी हम बात कर सकते हैं, लेकिन दैट कैन नॉट बी सीन मैक्रोस्कोपिकली हमारा अलग सिनेरियो रहता है। एंड इसके बेसिस पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके बेसिस पे आप मतलब आजकल बड़ी थ्योरीज चलती है अबाउट मल्टी यूनिवर्स। आपने नाम सुना होगा मल्टीवर्स एंड ये सब जो मूवीज़ वगैरह आती है मल्टीवर्स थ्योरीज एंड ये सब चीज़ें। तो बेसिकली इसके ऊपर थ्योरीज वगैरह ये सब आती है कि एट द सेम टाइम दे कैन बी अनदर यूनिवर्स एंड ऑल दैट। खैर वो सब हाइपोथेटिकल या फिर सिर्फ थ्योरीज है, लेकिन राइट नाउ लाइक वी कैन टॉक अबाउट दिस थिंग इज़ लेजिट कि एट द सेम टाइम एन एटम शोज वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। एंड उसके लिए ये शॉर्डिंगर जो कैट एक्सपेरिमेंट था
ये किया गया था. Just remember this, and if you are interested, तो you can just have a look at the video or something else इसका, and then if you want, like we can discuss about this as well. Like this is really interesting, इसको हम discuss कर सकते हैं if you want. ठीक है? Okay, sir. Okay. Okay, ठीक है. So let's wind it up here only, and then we will continue it from tomorrow. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Okay. Thank you.